بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام آپ کے پاس ورحمۃ شیر اللہ۔ ہے تفرین؟ ہاں جی ہے جی شیر آپ کے میرے پاس پاس نہیں ہے، ادھر ادھر تو نہیں چلی گئی، تو ادھر ادھر کر کے دیکھیں، پتا نہیں، میں نے شیئرنگ آ گئی شیئرنگ آ ہوئی گئی ہے، ہے۔ ٹھیک سائڈ ہے، پہ جی آ کر آپ کے گئی، لوگوں کے دیکھیں۔ لیے تھوڑی سی آسانی کے لیے شیئرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو آ گئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کرنا تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آ جائیں گے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باب جو ہم پڑھنے لگے ہیں حلیمہ سعدیہ کی گود میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ یہ دو مقاصد ہوتے تھے بچوں کو ادھر صحراؤں میں بھیجنے کے۔ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ گاؤں کی ہوائیں فضائیں کھلی ہوتی ہے نا، شہروں کی آبادی میں گھٹن ہوتی ہے، تو وہ گاؤں والے جو ہیں وہ خالص زبان جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے، شہروں والے اس میں سلینگ ڈال چکے ہوتے ہیں، اس میں ادھر ادھر کی باتیں۔ تو یہ مقصد تھا بیچنے کا۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا، انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے ہمیں کیا، یعنی کہ کچھ ملنے والا تو نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہمیں کیا مل سکتا ہے جہاں پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی جس کی قسمت جاگنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔ وہ کیوں چھوڑ کے گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دائیوں نے کیوں دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا؟ کیونکہ ان کی اپنی والدہ نے پلانا تھا دودھ ان کو۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ آپ ہی اس بچے کی نگہبانی کریں گے، میں آپ کو لوٹا دوں گا آپ کا بچہ۔ تو تمام دائیوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دودھ ہم نے حرام کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پہ دودھ پینا ان کا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بناتے ہیں سبب۔ تو حلیمہ سعدیہ کا تارا جاگنا تھا، ایک چمکنا تھا تارا، ان کے گھر میں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام باقی دائیاں جو تھیں آٹومیٹکلی ان کو چھوڑ کے چلتی گئی، ان کو نظر ہی نہیں کچھ خاص آیا بچے میں یا کسی اور چیز میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو ماشاءاللہ کے تیار کیا۔ تو دائیوں کا قافلہ جو ہے وہ تو آگے بڑھتا گیا، نہیں لیا بچے کو، یہ بچہ یتیم ہے اس لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا۔ جہاں پہ آگے کرنا ہو مجھے بتا دے، میں آگے پھر کر دوں گی، ٹھیک ہے آپ لوگوں کا۔ کیا آپ کی سکرین پہ تھوڑا ہی آتا ہوگا؟ اگر نظر نہیں آ رہا تو مجھے بتا دے، میں اور اوپر کر دیتی ہوں۔ سسٹر آ رہا ہے؟ نہیں بچ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، آپ کا آگے چلا گیا ہے کیونکہ میں کوشش کر رہی تھی اسے بڑا کرنے کی تو وہ آگے چلا گیا۔ یہی اب میں آپ لوگوں کے لیے سہولت تو دے رہی ہوں لیکن یہی ہے، ٹھیک ہے سسٹر آگے آپ ویسے ہی پڑھی جائیں، ویسے ہی نہ بھی نظر آئے کوئی نہیں، ہم سن رہے ہیں آپ کو نا۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ایسے پرابلم ہوتی ہے نا۔ تو وہ چھوڑتی گئی، یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہے۔
اور اب کوئی بچہ باقی نہیں رہا. ہاں ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، یعنی کہ اب یہ حد تک ہوگی مجھے میرے لیے کہ میں واپس جاؤں بچے کے بغیر. دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں یہ مجھے تانے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہو ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں. عبداللہ بن حارث بولے کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی عبد المطلب کے گھر گئیں. جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا. پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی. سوچ سکتے ہیں کہ جب چھوڑ کے دائیاں جا رہی ہوں گی تو ماں پہ اور دادے پہ کیا بیت رہی ہوگی، ان کے احساسات کیا ہوں گے. ریجیکٹ کر کے جا رہی ہیں نا بچے کو، جی ہرٹ ہی ہوتے ہیں سسٹر. اتنی آئی اور ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت، کتنے دکھ یاد آ رہے ہوں گے کہ آج میرا شوہر بھی زندہ ہوتا جی میرے بچے کی بھی اس طرح قدر ہوتی جس طرح دوسرے بچوں کی ہو رہی ہے. اور دادا کو بھی یہ ملال ہوگا ضرور جب کیونکہ کسی کی شادی ہو تو بچے کو بار بار لوگ آئے دیکھ کے جائیں تو کیا ہوتا ہے اس بچے کو بھی اور ماں باپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے نا. تو جی ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں کچھ ڈالنا ہوتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے جب حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ لے گئی ان کے پاس. وہ چادر سفید رنگ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا. آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی. حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے. انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا لیکن یوں ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پھیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے سبحان اللہ اور انہیں آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے. سبحان اللہ کتنا پیار آ رہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بچپن میں ہی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا. کیوں نہ راغب ہوتی ہوں جب اتنا کچھ دیکھ رہی تھی سامنے. تو یہ بعد میں انہوں نے فرمایا تھا نا، بعد میں جب لے گئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی. بچے کے لیے قافلے میں آئی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے، یعنی کہ خود ہی دیکھو دائیں طرف سے پینے لگے. پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے دودھ نہ پیا. کیا نہ ہمیں آتا ہے سمجھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام بائیں طرف سے شروع کرتے تھے، دائیں طرف سے شروع بائیں کرتے طرف سے ہم نے دائیں طرف سے. اور زندگی کا معمول رہا تھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی زندگی کا معمول تھا کہ کاموں کو دائیں دائیں طرف طرف سے شروع کرتے تھے. تو ہم نے سنت کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے جی یہ انشاءاللہ. دیکھو ابھی بچے ہیں تو سنت کا پتہ چل گیا ہمیں کہ کیا جی کرنا ہے. ہم نے اپنے لیے نقطے لینے ایسے نہیں ہم پڑھ رہے اس کو انشاءاللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے. بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا کیونکہ ظاہر ہے ماں کے بچہ پیدا ہوا ہو تو نیا بچے
जच्चा हो तो फिर ही वो पिला सकती है ना दूध को। तो फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। याद रहे कि काफिले की सवारियां जा चुकी थी, मक्का छोड़ चुकी थी, लेकिन आगे निकल गए जी, बाद में आने वाले आगे चले गए। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन सारी हैरानगी से मुखातिब हुई, "ऐ हलीमा जी, आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या जो वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था?" क्यों? क्योंकि भूख थी, गरीबी बहुत थी, खाना नहीं था उसको भी। तो आपको पता है सहरा में तो जानवरों को फिर कुछ ना कुछ दिया जाता है ना। वो वहां पे तो ग्रास और बूटियां वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं होती। जवाब में मैं उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम उसका मामला अजीब है।" अल्लाह की कसम क्यों खाई उन्होंने? अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी को पैगाम नहीं दिया था। हम्म क्योंकि वो अल्लाह को मानते थे, सिर्फ अल्लाह को एक नहीं मानते थे, वाहिद नहीं मानते थे, और अल्लाह को सबसे बड़ा रब कहते थे। अल्लाह सबसे बड़ा है और अपने बुतों को फिर बाद में। तो जब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ आती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात होते थे, तो फिर कहते थे सबसे बड़े रब को पुकारो, फिर अल्लाह अकेले को पुकारते थे। जैसे कि अब्दुल मुतल्लब ने पुकारा था ना, इस तरह। ये फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। बनु साद की बस्ती जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहना था। अब इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। इनमें से बहुत कम और बहुत मुश्किल से जिन्हीं के दूध निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बेदस्तूर बहुत कम दूध देती रहीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। अब सोच सकते हैं हसद कितना हुआ होगा लोगों को, क्योंकि लोग हसद उसी वक्त करने लगते हैं ना। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने फिरने लगे। सोच सकते हैं कभी 2 माह का बच्चा चलने फिरने लगे? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 माह के हुए तो बातें करने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थी। यानी कि ऐसे ही नहीं, वो जो बातें करते हैं ना बच्चे, वो क्या कहते होते हैं उनको, बाबलिंग, तो वो बाबलिंग नहीं करते थे, माशाल्लाह। क्लियर कट बोलते थे, जैसे समझ आती थी। 9 माह की उम्र में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा न था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती है। यानी सब चारों तरफ फैल गई खुशबू। इस तरह सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे। जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कथीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अब मैं ये जो पढ़ के आपको सुना रही हूँ, इसके पीछे ये किताब है, मुझे नहीं पता कि कितना चीजें ऑथेंटिक है ये, ठीक है। यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। तो हम भी ये दुआ हमने सीखा है ना ये पढ़ना, जिक्र जी। जी। मांगते भी रहे हैं तो मांगे भी इन दिनों में।
इंशाल्लाह। यानी अल्लाह फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालिदा के पास आए। उस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। 2 साल दूध पिलाने के बाद माँ बाप के हवाले हो जाते थे बच्चे। तो अब क्या हुआ, उधर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और मुद्दत हमारे पास रहे, यानी कि और मिलता जाए। चुनांचे हमने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से बात की, उनसे यूँ कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो-हवा का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार-बार कहा तो आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आमना मान गईं और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेलते नज़र आते। आप उनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है दिन में मेरे भाई-बहन नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि ये उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बहन भाई थे, यानी दूध शरीक भाई बहन। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, ये देखो कितने छोटे-छोटे हैं ना, क्योंकि जो बच्चा दूध पी रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का ही है ना तकरीबन। तो वो कहाँ जाते हैं? बकरियां चराने। शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश-खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए, वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत हुई थी। कितने छोटे बच्चे थे ना। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ये जो ना अभी इसकी आने लगी कि फरिश्तों की, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों कौन थे? जिब्राइल और हज़रत मीकाईल थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या वो ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लटा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रवायात में ये वज़ाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था, जो इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है, वो चीज़, वो जगह जो है वहाँ से। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए। उस वक़्त वो मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो, यानी कि अब डरने लगे घर वाले। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई, यानी कि बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। हम्म। जी मैं आप लोगों के लिए भी आगे कर दूं, जो देख रहे हैं वो देख सके।
नजर आने लगा आपको दूसरा पेज? जी। ठीक है जान। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुतल्लब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई खाने में पहुंची तो बालाई इलाके में पहुंची। बालाई इलाका क्या होता है, जरा ऊंचा। जी। तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुतल्लब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते 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 तहामा की वादी में पहुंच गए। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। यानी ये वो कहते होते हैं ना, बहुत घना दरख्त है तो छांव ज्यादा होती है ना। अब्दुल मुतल्लब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त तक कदर कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुतल्लब पहचान न सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतल्लब हूँ। यानी कि सुभान अल्लाह, इस उम्र में भी पूरा नाम। बच्चों को पूरा नाम बताना चाहिए ना माँ बाप का। जी। हम कहते रहते हैं मैं आपकी अम्मी हूँ, मैं आपका अब्बू हूँ, यही कहते रहते हैं, ये आपका दादा है, ये दादी है। जी। लेकिन अल्लाह ना करे कि कहीं बच्चा गुम हो जाए तो क्या हो फिर? वो ही छोटा बच्चा बता नहीं सकता फिर, है ना। जी। तो इसलिए बच्चे को पूरा नाम अपना बताना चाहिए। जहां तक के घर का पता वगैरह भी बताते होते हैं कि बच्चे को पता चल जाए कि मैंने क्या बताना है किसी को ना। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे बच्चों को महफूज रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यानी कि पूरा नाम बता दिया। ये सुनकर अब्दुल मुतल्लब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुतल्लब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ रवाना हुए। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। बकरियां और गायें ज़िबा की। एक तो बच्चा मिल गया और दूसरा क्या, उस खुशी में, और दूसरा बच्चे के घर लौटने की खुशी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद रखें कि अकीका पहले हो चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वें दिन। जी। जी। ये अकीका नहीं था, ये ना कोई नहीं, सोचे। हाँ जी, नहीं वो तो पहले हो चुका था। हाँ जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आई। तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? यानी कि इतनी जल्दी आप क्यों ले आई? आप तो कहती थी और हो रहे। आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ क्योंकि इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबोगरीब वाकयात देखे थे। यानी कि अकेला वो ही नहीं था, गुम हो जाने का वाकया, जब पेट चाक किए जाने का। असल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम जब आए तो कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो है वो जिधर दिल था उधर से चाक किया और दिल को बाहर निकाला, और एक जगह यानी भी ये भी आता है, और उसको धो दिया। दिल को धोया किससे? कि आबे ज़मज़म से। आबे ज़मज़म से धोकर यानी कि पानी ज़मीन का इस्तेमाल किया। इतना साफ पानी वो, तो आबे ज़मज़म से धोकर
दोबारा सीने में डाल दिया। तो वो हालत उनके बच्चों ने देखी थी, किसी बच्चे ने देखी थी जो कि दौड़ के आए थे। ये और रवायात से आता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो अब क्योंकि उसने बहुत सारे वाकयात देखे थे, फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी तौर पर, यानी कि अब देर नहीं की, फौरी तौर पर वापस मक्के में एम, लाने की उसने तैयारी कर ली। वापस लाने पर मजबूर हो गई वो चंद वाकयात हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। जे लोग आसमानी कुतुब तौरात को मानने का दावा करते थे, यानी कि जे एक्सप्लेन कर रहा है लिखने वाला कि कौन है होते हैं यहूदी। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात बताई, क्योंकि इतने डिफरेंट वाकयात हो रहे थे स्पेशल किस्म के, तो इसलिए शायद उन्हें तज्जुब हुआ होगा कि मैं पूछती हूँ किसी से। तो यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल करने का इरादा कर रहे हैं, तो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, जे रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। क्यों? क्योंकि यतीम बच्चे का ही उनकी किताबों में आया था, क्योंकि वो यतीम होगा जो आखिरी नबी होगा। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाला है, उनका दीन सारे इस्लाम में फैल जाएगा, सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की जे अलामात होंगे, और जे के वो यतीम होंगे। अब चूंकि इनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तुर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया। एक मर्तबा वो आपके अकाज के मेले में, आपको अकाज के मेले, ये एक बहुत बड़ा मेला लगता था, में ले आई। जाहलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था, जैसे हम भी कहते हैं वो बहुत बड़ा मेला है, उधर हमने जाना, लोग हमारे बहुत जाते हैं इलाकों के। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बढ़ाइयां बयान करते। सोच सकते हैं आप, शवाल का महीना, तो फिर आगे हज के महीने शुरू हो जाते थे ना। पहले ये खूब खेल कूद करते, उधर एंजॉय करते, और फिर हज के लिए आगे आ जाते। तो इस मेले में हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गई। उसने पकार कर कहा, लोगों इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सिरक आई। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहन की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा, और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि जिल हिजाज से, ये हजाज जो इलाका है उससे उनका गुजर हुआ, जहां भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था, लोग इसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। आप सोच सकते हैं, ये आज भी होता है ये काम।
जी आज होता भी है। हमारे लोग करते हैं, हाँ जी। करते हैं सब हम। शिरक में आता है। हलीमा सादिया उसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चला उठा, वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरते इब्ने हिशाम, ये इब्ने हिशाम मैं पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि ये मैंने की थी, क्योंकि ये सीरते इब्ने हिशाम बहुत पुरानी भी है और बहुत ऑथेंटिक है। सीरत इब्ने हिशाम जो है, ये मैंने आप लोगों को भेजी भी थी, आप मुझे मिल नहीं रही। सीरत इब्ने हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढों के दरमियान, यानी कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत को देखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। क्या आपको लगता है कि किताबों में, पहली किताबों में, आसमानी जो किताबें हैं, क्या बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुर्ख डोरे होंगे? और सब वो निशानियां उन्हें पता था। माँ बाप का बता दिया, इलाके का बता दिया, बच्चे का बता दिया कि यतीम होगा, सब कुछ बता दिया उन्होंने। तो फिर भी अल्लाह अल्लाह इसीलिए तो फरमाते हैं कुरान में कि ये खुदा की कसम इस तरह पहचानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहूदियों के बारे में बात थी ना, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, वो बेटों बल्कि बेटों के से भी बेटों से भी ज्यादा, ज्यादा। हाँ बेटों जी। से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम को ये जी। पहचानते हैं लोग। तो लेकिन फिर भी इनकार अकड़ का था, तकब्बर का था, वो हसद और बुग़्ज़ का था, कीने का था कि इनके जहाँ के कैसे नबूवत यानी कि बदल कैसे गई। आपको पता ही तो है कि पहले से ही तो वो दुश्मनी चली आ रही थी कि बनी इस्माइल में सब कुछ यानी कि इसहाक में सारे थे ना ये पैगंबर आ रहे। जी तो वो बनी इस्माइल को तो कुछ जानते ही नहीं थे, अनपढ़, उम्मी और क्या-क्या लक़ब देते थे वो। क्योंकि इनके पास कोई ना किताब आई, ना नबूवत आई। अब काफ़ी देर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद यही तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो थे, जो आए थे। तो ये फिर ये है कि इसलिए भी उनका था बहुत ज़्यादा, एम, उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे। क्या इस बच्चे की आँखों में कोई तकलीफ़ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। ये सुर्ख़ी तो उनकी आँखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। हम इसे अपने मुल्क ले जाएँगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है। हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो फिर क्या करेंगे ये? हुँ, उसको रहने देंगे ज़िंदा? नहीं, नहीं। काबू करेंगे और कुछ करेंगे। हाँ जी, इसी हम भी इसके तरह बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गई, जहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा साहबा के पास पहुंचा दिया। कितने कठिन हालात से गुजर के आई ना। जी। तो पहले जब आई थी सब ठीक ठाक था, तो अब सब वाकयात हुए। ऐसे नहीं वो लेके आई जल्दी से, क्योंकि जब मालो दौलत इंसान को मिल रहा हो तो क्या बंदा चाहता, बंदा क्या चाहता है कि इसी और कुछ और देर, लालची है ना इंसान कुदरती तौर जी। पर। हम्म, तो लेकिन अब इतने वाकयात हो चुके तो उसे डर महसूस हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का। तो इसलिए इन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे, अभी भी थे। ठीक है, क्योंकि ये जहाँ पे जैसे ऑपरेशन होता है तो वहां पे निशान रह जाते हैं ना ऑपरेशन के, जी जहाँ से जी काटा होता है। तो जी निशान मौजूद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये भी कह दें कि पहला दिल का ऑपरेशन था दुनिया पे, जी। जो अल्लाह हम्म, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, हाँ और जी। उसी वक्त उठ के भी खड़े हो गए।
अल्लाह की शान थी ना, है ना। जी ये तो अल्लाह जी, अल्लाह की अल्लाह हमद की है। शान थी, हाँ जी, सुभान अल्लाह हमद है। अल्लाह की। तो जे फिर जे है कि जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं, टांके जी, खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़ये के बाद हलीमा सादिया और उसके खावंद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल थी। 4 साल सिर्फ़। 1 साल और रखा ना? जी जी, नहीं 2 साल और 2 रखा। साल और रखा। 2 साल और रखा। 2 साल और रखा, 2 साल एक्स्ट्रा। हम्म। हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया। उस वक़्त आपकी उम्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल थी। एक रिवायत में मिलता है कि उस वक़्त उमर शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उमर मुबारक 6 साल हो चुकी थी। ये डिफरेंट रवायात हैं, इसलिए हमें इनसे कुछ तल्लुक नहीं होना चाहिए, हमने असल बात लेनी है, ठीक है? हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना इंतकाल कर गई। सुभान अल्लाह। वालदा का साया अभी सर से उठ गया। अभी वालदा मिली ही थी। सोच सकते हैं आप? बाप तो पहले ही तो नहीं था। तो जब पैदा हुए तो उस वक़्त कितने छोटे थे, तो वालदा छूट गई। अब वालदा अभी मिली हैं, कुछ दिनों का प्यार मिला होगा, तो वालदा चली गई। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको यहीं दफ़न किया गया। किनको? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मेके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन जो थी वो उनकी लौंडी थी। उम्मे ऐमन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। उम्मे ऐमन कहती हैं एक दिन मदीने के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, "ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ। हम उन्हें देखना चाहते हैं।" वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आई। उन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर एक ने अपने साथी से कहा, "ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरतगाह है।" यानी कि ये अभी तो बचपन में आया है लेकिन इसकी हिजरत जहाँ होगी। तो कहाँ लौटे? नानके की तरफ लौटे ना, नानहाल की तरफ हिजरत की थी फिर। जी यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को बाजी यहूदी सॉरी हिजरत किहनू कहंदे मैनू हिजरत हिजरत जब कोई अपना घर बार सब कुछ छोड़कर किसी और इलाके में, किसी और मुल्क में या किसी और जगह चला जाए। अच्छा सब ठीक कुछ छोड़ के सिर्फ अल्लाह के लिए। अच्छा लोगों के डर से भी लोग हिजरत करते हैं, लोग मालो दौलत के लिए हिजरत करते हैं, लेकिन ये हिजरत अल्लाह के दीन के लिए थी। ठीक है, अच्छा सही थैंक यू ठीक है, हाँ जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गई। बाप कहाँ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? कहाँ फौत हुए थे? अगर किसी को याद हो पीछे से तो। बाप अब्दुल्ला कहाँ फौत हुए थे? लगता है आप सो रहे होंगे जब सुना नहीं होगा। बाजी नहीं नहीं मदीने में ही तो मैंने फौत हुए हाँ थे, जी मैं मदीने के कहने लगी बाहर ही तो। मदीने के पास हाँ जी क्योंकि वो भी तो मदीने ही गए हुए थे। जी तो मदीने के बाहर वो भी फौत हुए थे, तो उधर ही उनकी भी कब्र मुबारक है। तो ये भी मदीने के बाहर ही फौत हुई बवा के मकाम पर और वहीं दफन कर दिया गया फिर उनको ना। ज़ाहिर है उस वक़्त तो कोई वो आज जैसी सहूलत तो नहीं थी कि अपने इलाके में ले जाए लोग ना। जहाँ कोई फौत होता वहीं दफन कर दिया जाता था। ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿ ऑफ कोर्स होती है। ਮਦੀਨੇ ਅੱਛਾ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की भी कब्र उधर ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि गए भी थे, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। गए इंशाल्लाह भी थे कब्र पे, वालदा की कब्र पे गए भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर मैं
फर्ज नमाज के बारे में फरमाते थे कि अगर मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ मुझे जिंदा होती, मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता। सुभान अल्लाह। इतना प्यार करते थे कि देखा भी नहीं, देखा भी कब बचपन में, तो बचपन की यादें। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को ये सबक दे रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम तो दुनिया में खोकर रह गए ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतनी तकलीफें मिलना हम सब के लिए था कि कहीं कोई ये ना कह सके कि मुझे तो दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें मुझे ही मिली हैं। ऐसे ही है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर उस सिचुएशन से गुजारा जिसमें कोई कह सकता था कि अ, यानी कि मैं तो उस उनसे भी ज्यादा दुखी हूँ, है ना। हाँ जी। तो अल्लाह ताला हमें ये समझ अता फरमाए कि जो हमें तकलीफें आती हैं अल्लाह की मशीयत से ही आती हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि ये आपके हाथों की कमाई है, यही ज्यादातर गुनाहों की वजह से आती है। तो हमने निराली शान का मालिक पाल लिया। कितने निराली शान वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं? वाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे ना। हाय। तो अब जहाँ पे मैं आप लोगों को कर रही हूँ इधर आगे पीछे ताकि आप लोगों को भी नजर आ जाए। जो बहन देखना चाहती है वो देख ले जिसे, ठीक है। सीरते खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निराली शान का मालिक। हजरत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची। 5 दिन बाद क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं? क्योंकि सवारियां क्या थी, यानी कि घोड़े और खच्चरे ही ऊँट होती थी ऊँट ना। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, ऊंट ऊँट ज्यादा होते थे। हाँ जी, ऊँट ऊंट और होते थे। खच्चरे वगैरह, घोड़े भी होते थे। तो ये ही सवारियां होती थी तो टाइम लगता था ना पहुंचते। जी। हजरत जनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुतल्लब के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये होगा ना कि माँ तो है ना, जी। अब माँ भी नहीं है। अब्दुल मुतल्लब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे क्योंकि सरदार थे ना मक्के के। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था, यानी कि कोई नहीं उधर जाता था उनके तजीम के लिए। चनाचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। सुभान अल्लाह। क्या बताया जा रहा है कि शान के मालिक और इस कालीन के मालिक जी होंगे बाद में। सुभान उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दुल अब्दुल मुतल्लब नहीं, चचा नहीं लिखना चाहिए था, जहाँ पे दादा है। अब्दुल मुतल्लब के अदब की वजह से आपको उस कलीन से हटाना चाहते थे। तो अब्दुल मुतल्लब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। यानी कि दादा भी इसका इकरार करते थे। ये चाचा नहीं है, दादा है, लेकिन असल में लिखा गया उनसे गलत। मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से इस फर्श पर बैठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर शफकत से हाथ फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो। उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है, यानी बच्चे को भी पता है कि उसकी भी शान बड़ी है, और दादे की भी शान बड़ी है, वो भी पता है कि कोई और नहीं बैठता, क्योंकि इतनी छोटे तो नहीं थे अब ना। इतनी एज का बच्चा, वैसे भी आम बच्चा भी हो तो वो भी पता कर लेता है।
मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो। तो ये ऐसा हुआ, उनकी ख्वाहिश पूरी हुई? जी हुई जी पूरी। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबई तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। जहां तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में अब्दुल मुतल्लब की आंखें जवाब दे गई थीं। आप नबीना हो गए। इसी हालत में एक रोज वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया, उस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज सुनकर अब्दुल मुतल्लब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कलीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कलीन से उतार दिया है। लेकिन इतने सालों बैठता रहा तो उन्हें क्या तकलीफ थी, है ना? हम्म, ये सुनकर अब्दुल मुतल्लब ने कहा, मेरे बेटे को कलीन पर ही बैठा दो। ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि इस रुतबे को पहुंचे, ये उस रुतबे को पहुंचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, उसके बाद किसी को ना मिले। कितने कितने हसद में आते होंगे ना चाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जी उनकी भी तो औलादे थी ना। जी ये सुनकर ये बातें, बाप की बातें उसके हवाले में सोचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप को क्या हम्म, हमने जी कुरान में पढ़ा कि भाई हसद करते थे कि जी यूसुफ को ज्यादा प्यार करता उससे है बाप, ज्यादा प्यार है ना? करते होंगे। तो कुछ यही मामला सोच ओह सकते हैं आपके चाचों को कितना हसद आता होगा और उनके बच्चों को। एक रोज बनु मदलज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुतल्लब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमा थे। बनु मदलज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये लोग क्या नाशनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुतल्लब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इसी निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर, यानी कि जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहे हैं, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े होते थे। मोजज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान पड़ गए थे। अल्लाह ने बाकी रखना था ना वो। लोग इस पत्थर की जियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहिम है। यानी मकाम इब्राहिम कहा जाता है कि ये पत्थर जो था, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारें काबा की बना रहे थे ना, तो जैसे आजकल वो क्या काम करते हैं, लगाए होते जो है उन्होंने स्कार्फ होल्डर जो होते हैं ना, जी जहाँ पे जी खड़े होकर, जी जब जी इमारत ऊंची हो जाती है तो खड़े जी होकर बनाते हैं। जी तो वो काम करता था, ऊपर चला जाता, और जब आप नीचे से दोबारा बुनियादें बनाते तो नीचे आ जाता। वल्लाहु आलम। तो यही मकाम इब्राहिम है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबत आप में होना कुदरती बात थी। यानी कि नस्लों में चलता रहता है ना, कई कहते हैं ये जी इनका खानदानी बात है, खानदान में इनके चला आ रहा है जी। एक रोज हजरत अब्दुल मुतल्लब खाना काबा में हिजरे अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। इनमें एक पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुतल्लब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत मौजूद हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। तो ईसाइयों को पता था कि इस्माइल की औलाद में होगा, लेकिन यहूदी क्या चाहते थे कि इसहाक की औलाद में हो। सब जी ये शहर उसकी जाय पे पैदाइश होगा, इसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नजर यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, वो नबी यही है जी, तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुतल्लब बोले, ये मेरे बेटे हैं। उस पर वो पादरी बोला, ओ तब ये वो नहीं है, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुतल्लब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है।
اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، یعنی اب یہ بات سچ بولی نا آپ نے، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدرہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ امیر معاویہ نہیں ہے، یہ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دوست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ وہ لے کر ہی آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ پوتے سے پہلے جی اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے تھے، پہلے بڑے بڑے کو بھیجا، بیٹوں کو بھیجا، بیٹے نہیں لے کے آ سکے لیکن وہ ناکام لوٹ کر آئے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی اس لیے پریشان اور دعا مانگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب آپ کو دیکھ کر کہا عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے، یعنی اتنا تکلیف ہو گئی تھی۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے، یہ فرسٹ ٹائم میں ان کی بات سن رہی ہوں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گنی ہوں، بویں اور آبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبول گائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ جبل کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ۔ جبل پہاڑ، ہاں پھر پہاڑ۔ وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ہے نا، ہاں جی جی، کیونکہ جی قحط سالی تھی اور پھر ہاں جی بارشیں شروع ہو گئی تھی، ہاں ہاں جی، جی تو وہی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ قحط سالی جو ہے اب بھی ہے تو کیسے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جایا۔ تو صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا جو خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے کیونکہ سردار کی بیوی تھی نا، جی انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئی، اپنے ہی شوہر میں ان کے۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نو عمر تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، یعنی کہ اب دعا کرنے کا طریقہ دیکھیں، ہے نا، کیونکہ جب ہم یہ اپنے آپ کو غلامیت میں اللہ کی میں دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اصل میں نا، لیکن جب ہم بڑے بن کے دعا کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ دعائیں بھی پھر ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہے، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہے، ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے،
हम मुसलसल कहत साली का शिकार हैं। अब ऊंट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे सब खत्म हो चुके हैं और जानवरों पर बन आई है, यानी कि बिल्कुल वो भी जाहिर है भूख से प्यास से मर रहे हैं। इसलिए हमारी ये खुश्क साली खत्म फरमा दे, हमें जिंदगी और सब्जी और शादाबी अता फरमा दे। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, वादियां पानी से भर गईं। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई, और वो क्या थी कि वो अजीब बात ये थी कि क्रैश को ये शराबी जरूर हासिल होगी, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मजर की करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई, उनमें नहीं थी। तो ये कैस पहाड़ था ना, पहाड़ का नाम क्या है, अबू कैसन, हाँ जी। क्योंकि जाहिर है उनके इलाके में होगा ना वो, जी। तो इसलिए उसका नाम ये रखा गया। तो ये देखे अल्लाह की कुदरत की निशानियां, जिन्होंने दुआ मांगी उनकी तरफ तो बारिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ नहीं। जिस जगह पे दुआ मांगी गई उस जगह के लोग महरूम रहे। ऐसे ही है ना लगता। जी। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई, एक कबीले पर बारिश और आसपास के कबीले, सब कबीले बारिश से महरूम हो गए। यानी सिर्फ किस कबीले पर हुई, कुरैश के। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए, इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम जबरदस्त कहत और खुश्क साली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अब्दुल मुतल्लब की वजह से हुआ है। इसलिए हम सब इनके पास चलते हैं, अगर वो हमारे लिए दुआ करें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। यानी कि फिर उनको बहुत आला दर्जे का समझने लगे। जैसे हम लोग भी फिर कहते हैं ना कि उसके पास जाए, वो उसको ठीक हो गया है, फलां ठीक हो गया, तो हम भी जाएंगे उधर ही। जी। ये मशवरा सबको पसंद आया। चनाचे ये लोग मक्का मुकरमा में आए और अब्दुल मुतल्लब से मिले, उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुतल्लब, हम कई साल से खुशहाली के शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप हमारे लिए भी दुआ करें। इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुतल्लब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। कौन सा मैदान है, अरफात में, हम्म, जहाँ पे लोग जमा होते हैं। हाँ जी। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुतल्लब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, क्योंकि वो हर जगह अपने दादे के साथ जाते थे। दादा वैसे भी पीछे छोड़ के नहीं जाता था। जो प्यार बाप से नहीं मिला, दादी से अब मिल रहा था। अरफात के मैदान में अब्दुल मुतल्लब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो इस पर बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बैठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, बच्चा भी गोद में है, वो जो कि सारे अंबिया का सरदार होगा। ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गर्ज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मजर के लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं, ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। पास है अल्लाह, उनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज और आसमान से उनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि उनकी जमीनें सरसब्ज हो जाएं और उनकी तकालीफ दूर हो जाएं। ये देखें दुआ मांगने का तरीका। पहले अल्लाह की हमदो सुना, यानी कि इन सब चीजों का मालिक तू ही है। ये देखे, यही लोग हैं जो कि फिर इतने 100 बुत रखे हुए, 360 बुत खाने काबे के अंदर थे और उन बुतों से भी मांगते थे ना। कोई बारिश की देवी, कोई फलां का देवता, कोई जी। रिज्क का देवता। तो जब ज्यादा तकलीफ होती थी तो किधर को पकारते थे, किसको, अकेले को, अल्लाह को। अल्लाह तो तो ये अल्लाह अकेले को अब भी ये भी पका रहे हैं, ठीक है। यानी कि बाकी लोगों की मैं बात बता रही हूँ कि वो लोग किसको पकारते थे।
तो अब्दुल मुतल्लब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा, अब्दुल मुतल्लब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मुज़र की बस्तियों की तरफ हो गया, यानी बता दिया गया कि बारिश बरसने लगी है। ये देखकर अब्दुल मुतल्लब ने कहा, ए ग्रो क्रैश और मदर जाओ, तुम्हें सिराबी हासिल होगी। चनाचे जे लोग अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आ गईं। मक्के में आंखों का इलाज करवाया गया, लेकिन अफाका ना हुआ। अब्दुल मुतल्लब से किसी ने कहा, अकाज के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकलीफ का इलाज करता है। अकाज का मैंने बताया ना पहले, वो बाजार लगते थे जी ना, जी अभी भी कहते हैं वो बाजार हैं वहां पे, वल्लाहु आलम। अब्दुल मुतल्लब आपको उसके पास ले गए, उसकी इबादतगाह का दरवाजा बंद था। उन्होंने इसे आवाज दी, राहब ने कोई जवाब ना दिया। चनाचे इबादतगाह में शदीद जलजला आया। राहब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकला। किसके लिए निकला था असल में? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला ने, उसने आवाज नहीं दी, अल्लाह ताला ने बाहर निकाल दिया उसको दूसरे। हाँ जी, अल्लाह ताला की फौजें जो है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह की फौजें। खाना काबा को बचाने के लिए अल्लाह ने अबाबील भेजे। जी तो ये देखे, फिर अल्लाह ताला ने हुदहुद से भी काम लिया था ना, जी, जी लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए हुदहुद से भी काम लिया था। तो इधर अल्लाह ताला ने जलजले को भेज दिया। तो फिर वो बाहर निकल आया। राहब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर ना गिर पड़े, इसलिए एकदम बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो चौंक उठा। वो चौंकते क्यों थे? उनको पता था ना। सामने वो उनको निशानियां, एकदम निशानियां वो नजर आ जाती खूबसूरत थी। चमकता हुआ चेहरा नजर आ जाता था। जी, उसने कहा, "ऐ अब्दुल मुतल्लब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है, अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबादतगाह जरूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों या ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल न कर डाले।" फिर उसने कहा, तो जनी ये दोनों ही अहले किताब दुश्मन थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू से जी, ही। क्यों दुश्मन थे? क्योंकि किताबों में पढ़ रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे कि इनको यानी कि क्या किया जाए, लेकिन दुश्मनी ले ली। फिर उसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद उनके पास मौजूद है। अब्दुल मुतल्लब जी सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका लाबे दहन उनकी आंखों में लगाए, यानी वो खुद अपना लाबे दहन अपनी आंखों पे लगाए। उन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गईं। पुरानी आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी निशानियां लिखी हुई थी। उसकी तफसील बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हमेर था। वहां एक शख्स सैफ बिन जज़न था। वो सैफ हमेरी कहलाता था। किसी जमाने में उसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत करते थे, यानी कि हुकूमत वालों की औलाद थी। फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। वहां हबशियों की हुकूमत हो गई। 17 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आजाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनाचे उसने एक फौज तैयार की। इस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आजाद कराने में कामयाब हो गया, वहां का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था, क्योंकि मुख्तलिफ इलाके हैं ना ये सारे। जी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत, हुकूमत जो थी, ये कब्जा सारे अरब ममालिक पर हुआ था। फिर एक ही हुकूमत कायम हुई थी, एक ही अमीरुल मोमिनीन बना था बाद में भी। जब इस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। यानी कि जब कब्जा हुआ था तो बहुत अफसोस था। अब यमन के लोगों को वो मिल गई है उनकी बाकी बाद में, तो उनको बहुत खुशी हुई अरबों को। उनकी खुशी की एक वजह ये
थी कि उन्हें हबशियों ने अब्रहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते थे ना हबशियों को, इस वजह से भी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अब्रहा का साथ दिया था। याद है वो महमूद नामी ऊंट उन्होंने भेजा था, क्या है, कैमल, क्या उसका है, हाथी, जो हमने पढ़ा पीछे ना, हाँ जी, वो कल पढ़ा था ना। हाथी का पढ़ा था, महमूद नामी हाथी, उन्होंने बहुत बड़ा हाथी जो थे भेजा था, तो इसलिए भी उनके लगते थे इससे, यानी कि दुश्मनी थी कि इन्होंने साथ दिया अब्रहा का। इसलिए चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारकबाद देने के लिए गया। इस वफद के सरदार अब्दुल मुतल्लब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमारी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। उसे ये भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने उन लोगों को आने की इजाजत दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुतल्लब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। यानी अगर तुम्हें पता है कि बादशाह के दरबार में कैसे बोला जाता है तो फिर बोले। तब अब्दुल मुतल्लब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल होगा। सैफ इनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ, बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुतल्लब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुन रखा था। तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो, उसने कहा। यानी कि अब्दुल मुतल्लब कौन थे? पीछे से वो थे ना, मदीना के, नान के उधर से जाते थे। अब्दुल मुतल्लब की वालदा मदीने के कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था, क्योंकि यमन से आया हुआ था वो कबीला। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, बहन के लड़के आप पता कर सकते हैं कि जब हमारे भी गांव में से कोई किसी गांव जाते तो वो कहते थे कि ये मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि खान उधर गांव का बेटा है ना। जी तो जी ये रिश्ता हम जोड़ते थे ऐसे। जी तो ये यही रिश्ता जोड़ा जा रहा है। जैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि ए हारून की बहन, हालांकि वो हारून की बहन तो नहीं थी, लेकिन उनके खानदान से थी, इतनी लड़ियां गुजरने के बाद आई थी। तो इस तरह ये खानदान को पकार कर एक किस्म का कहा जाता है कि बहन जब आई या कुछ और। जी असल में बहन नहीं थी, ठीक है, ये भी याद रखें आप, ये ना सोचें कि वो उनकी बहन थी। अच्छा ठीक है। तो इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आपको आपको आप सबको खुशमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई, जहां तक कि एक माह गुजर गया। एक माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुतल्लब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, माशाल्लाह एक माँ रहे मेहमान बनकर। ऐ अब्दुल मुतल्लब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज ना बताता। तुम इस राज को इस वक्त तक राज ही रखना, जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को जाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीम अलशान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है, और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुतल्लब ये सुनकर बेहद हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुतल्लब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मुहरे नबूवत
हो तो उसे अमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब्दुल मुतल्लब ने ये सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का जमाना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही इसी का उसका ज़माना है और वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा, उसके दादा और चाचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरज़ूमंद रहे कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुलेआम ज़ाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खज़रज में इस नबी के मददगार बनाए जाएँगे। यानी कि हमारे कबीले के लोग उसके मददगार बनेंगे। कब मददगार बने थे? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके उन्होंने बुलाया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमारे जहाँ आ जाएँ, हम हिफाज़त करेंगे आपकी। तो तब मददगार खिज़रज के लोग बने थे। औस और खिज़रज याद रखें, हम किताबों में पढ़ते आए हैं इस्लामियात में कि औस और खिज़रज 2 कबीले थे मदीने के और दोनों में जंगें लगती थी, सदियों जारी रहती थी। आपस में लड़ते रहते थे। और जो वो हम पढ़ते थे ना, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, तो कभी वो कुछ ऐसे अशआर भी पढ़ा करते थे। हज़रत अल्लामा इकबाल ने बनाए हुए थे, वो लिखे हुए थे। यानी कि इतनी उनकी जंगें मशहूर थी। तो ये एक कबीला खिज़रज के थे, ठीक है? जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल भी थे। तो इस नबी के यानी कि मददगार वहाँ से फिर निकले। उस नबी के खानदान और कबीले वालों को इज्जत हासिल होगी और उनके ज़रिए उसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और उनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उनके ज़रिए ज़मीन के किनके ज़रिए? खिज़रज के ज़रिए। खिज़रज जब मदद देंगे तो तब। तो उनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएँगे। वो बनी रहमान की इबादत करेंगे, वो नबी रहमान की इबादत करेंगे। अब रहमान जो है, अरबों के लिए याद है वो कहते थे रहमान कौन है? हम नहीं जानते रहमान को। जी। जी। तो ये उनको बता रहे हैं कि वो रहमान की इबादत करेंगे। तो रहमान नाम अल्लाह के नबी अल्लाह का वहाँ पे। शैतान को धमकाएगा, आतिशकदों को ठंडा कर देगा, जिन आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा, उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी, उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। तो ये आखिरी फरमान है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है। कोई और तो नहीं ऐसी बात आके बता के कर सकता कुछ भी। तो नहीं। ये आखिरी फरमान है। उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे, वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। तो जब किसी को हुक्म दे तो पहले अमल खुद भी किया जाता है, वरना वो उसमें असर नहीं होता। अब्दुल मुतल्लब ने सैफ बिन जज़न को दुआ दी, फिर कहा कुछ और तफसील बयान करें। यानी उन्हीं के बारे में बताया जा रहा था, कहते और भी बताएं। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुतल्लब मैं ए अब्दुल मुतल्लब इसमें शुबा नहीं कि तुम इसके दादा हो। अब्दुल मुतल्लब ये सुनकर फौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने आप तुमसे कहा है, क्या तुमने इनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है? यानी कि कुछ हो चुका है अभी कि नहीं? इस पर अब्दुल मुतल्लब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था। मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिन्ते वहब अब्द मनाफ से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त खानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाकया इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो उसके दुश्मन है और क़यामत तक है। ये यहूदी दुश्मनी में मुसलमानों के क़यामत तक दुश्मन है। अल्लाह इन्हें गारत करे।
ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा, यानी कि उनको ये भी खबर दे दी कि वो काबू नहीं पा सकेंगे उन पर, उस पर, इसलिए कि वो उसके दुश्मन हैं। सॉरी। और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से जिक्र ना करना। मुझे डर है कि उन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन ना पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं ये इज्जत और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों मिलने वाली है। चाचे भी तो सोच सकते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग इस वक्त तक जिंदा ना रहे तो उनकी औलादें ये काम करेंगी, यानी कि वो तो होगा काम। और अगर मुझे ये मालूम ना होता कि इस नबी के ज़हूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊँटों और काफिले के साथ रवाना होता, यानी मैं भी उसकी फिर मदद करता और उनकी सल्तनत के मरकज जसरब पहुंचता, क्योंकि मैं इस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर जसरब उनकी सल्तनत का मरकज होगा। पैदाइश कहाँ होगी? मक्के में। और सल्तनत किधर मिलेगी उनको? जसरब में। जसरब क्या है? किसको पता है जसरब का? मदीना सिस्टर। मदीना। मदीना का हाँ पहला नाम जसरब था, जसरब था, हाँ जी। है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जसरब कहलाता था। जी उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफात की जगह होगी और उन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पहले अलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है कि अगर मैं उसी वक्त उनकी अजमत का ऐलान कर दूं, यानी इसी वक्त कर दूं ऐलान, तो खुद उनके लिए और मेरे लिए खतरा पैदा हो जाएंगे लोग। ये डर ना होता तो मैं इसी वक्त उनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता। और तो ये किताबें भरी पड़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो कैसे ना पहचानते जी फिर, है ना? इसीलिए तो बार-बार पहचान रहे थे। अब कोई इतनी मशहूरी हुई हो किसी की और सामने आ जाए तो क्या होगा? तो फिर वो हसद और बुग़्ज़ जो था वो सीनों से बाहर निकलने आता था ना, ज़ुबानों पर आ जाता। तो ये डर ना होता तो वो कहते हैं कि मैं इसी वक़्त बता देता उनको, सभी कुछ बता देता, सभी कुछ लोगों को पहले ही बता देता। लेकिन मैंने ये राज़ अ, ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने इनकी सरबुलंदी और ऊंचे रुतबे रुतबे की दास्तानें सुना देता, लेकिन मैंने ये राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से भी किसी को नहीं बताया, यानी तुम्हें ही का अकेला पता है। इसके बाद उसने अब्दुल मुतल्लब के साथियों को बुलाया, इनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियां और धारीदार जमनी चादरें बहुत मशहूर थी। जे मदीने में भी बहुत मशहूर थी जमनी चादरें धारीदार, बड़ी मिकदार में सोना चांदी, 100 ऊंट हर एक को, और अंबर के भरे डब्बे दिए। अंबर क्या है? खुशबू। फिर अब्दुल मुतल्लब को उससे 10 गुना ज्यादा दिया और बोला साल गुजरने पर मेरे पास इनकी खबर लेकर आना और उनके हालात बताना, यानी साल हो जाए तो फिर आना कि भाई क्या हालात हैं अब। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुतल्लब अगर इस बादशाह का अक्सर इस बादशाह का जिक्र किया करते थे। आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुतल्लब का इंतकाल हो गया। अभी वो इंतकाल के मराहल में ही थे, वो भी जब वापस वो भी आ गए ना, तो याद है कि 8 साल के होने वाले थे, हम पीछे पढ़ के आए हैं। उस वक़्त अब्दुल मुतल्लब की उम्र 95 साल थी। तारीख की बाज़ किताबों में उनकी उम्र इससे भी ज़्यादा लिखी गई है। जब वक़्त अब्दुल मुतल्लब का इंतकाल हुआ, जिस वक़्त आप उनकी चारपाई के पास मौजूद थे, आप रोने लगे। अब्दुल मुतल्लब को अजून के मकाम पर उनके दादा कुस्सा के पास दफना दिया गया। कुस्सा कौन थे? पीछे पढ़ चुके हैं। कुस्सा की औलाद ही आई थी ना इधर, जी वो ही कुस्सा। अब्दुल मुतल्लब के दादा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा तो हाशिम थे ना, यानी कि दादा इसलिए कहा कि उनकी नस्लों में से थे, डायरेक्ट जी दादा नहीं थे। जी तो वल्लाहु आलम डायरेक्ट नहीं, मेरा ख्याल डायरेक्ट दादा थे उनके। हाँ जी, डायरेक्ट दादा थे क्योंकि हाशिम तो इनके भाई थे ना। मुतल्लब के भाई थे ना हाशिम, जिनके बेटे जी अब्दुल मुतल्लब शीबा हैं। पीछे से याद करें आप बात।
जी मरने जी से जी पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया था। जब अब्दुल मुतल्लिब फौत होने लगे तो उन्होंने चाचाओं में से अबू तालिब को चुना था। अब अबू तालिब आपके निगरान थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। उनके भाई अब्बास और जुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। और फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही करते रहे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मोज़िज़े देखे तो उनकी मोहब्बत में और इज़ाफ़ा हो गया। जे माली एतबार से कमज़ोर थे। वहाँ पे ये नहीं था जैसे आजकल मालो दौलत वाला ही सरदार होगा, ये नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का रिवाज नहीं था। बल्कि ये था, अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन सरदार थे। सरदारी इस वजह से नहीं मिलती थी कि वो गरीब हूँ या अमीर हूँ, दौलत की वजह से नहीं। तो ये अबू तालिब जो थे ये भी सरदार थे, लेकिन क्या है, इनके पास अब मालो दौलत नहीं था, क्योंकि बाप के बाद सरदारी इन्हीं को मिल गई थी। तो वो बहुत यानी प्यार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 2 वक़्त सारे घराने को पेट भरकर खाना उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी सब के लिए, उन सब के लिए काफ़ी हो जाता। सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक़्त होता तो वो सब दस्तरख़ान पर बैठते और अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सब के सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, जहां तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते। खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो इससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो आकर सीधे उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। बाप भी यही कहता था ना। एक मर्तबा यानी आम लोगों में नहीं फिर बैठते थे। जैसे मजलिस तो आम बैठे होते हैं ना लोग मजलिस में, लेकिन तकिए पे कौन बैठता है? सरदार। सरदार। तो जैसे रुतबे का भी पता दादा था। के पास बैठते थे ना। पहले हाँ जी। दादा के पास बैठते थे, अब चाचा के पास चाचा बैठते के हैं। पास बैठते हैं। एक मर्तबा मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और उज्जा से बारिश की दुआ करो। कौन थी ये देवियां थी उनकी। कुछ कहते थे तीसरे बड़े बुत मनाफ पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? क्योंकि हक वाले अभी मौजूद थे, लेकिन टावे टावे हम कहते हैं ना पंजाबी में, टावे टावे। जी कोई कोई जी। हाँ, तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? यानी कि बारिश कहत साली का मांगना है तो उनसे मांगो, अल्लाह से। इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के, क्योंकि सरदार था ना अब मक्के का, अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी कि किधर किधर। पहले पता चल चुका था, कहत साली का अब्दुल मुतल्लिब ने दुआ की थी। अब जी अबू तालिब करने लगे हैं। तो एक खूबसूरत आदमी आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चनाचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे जब दादा ने दुआ की थी, याद है? जी अबू जी तालिब के साथ और भी हम्म, बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। उसके बाद अबू अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घर घर कर आने लगे, यानी इतने इकट्ठे हो गए।
उस वक्त जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। तवाफ करते दुआ कर रहे थे। ये देखो अपनी औलाद को छोड़कर उंगली किसकी पकड़ी हुई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं अबू तालिब के जहाँ बहुत सारी औलाद थी, लेकिन फाका रहता था। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया था ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शायद लिया था जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। दोनों भाई थे ना जी उनकी औलाद को। इस तरह बहन भाई मदद करने के लिए बांट लेते थे आपस में। अगर अब तो औलाद कहते हैं कि थोड़ी हो तो बेहतर है, जी खाएंगे कहाँ से, इतना डर पड़ गया। उस वक्त ये डर नहीं होता था कि खाएंगे कहाँ से, और होना भी नहीं चाहिए। तो अबू तालिब एक एक बार जिल जिल हजाज के मेले में थे। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी ज़ाहिर करने के लिए कही थी। चाचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चाचा जान आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे प्यास लगी है। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। इतना हम रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। काफी लंबा हो गया ठीक है फिर। कि अभी आपने करना है, पर जी इसको मुझे खत्म जाना करना है मुझे 10 दिनों ने के अभी नहीं। बता दे मुझे। पर जी अगर नहीं खत्म होगा तो बाद में भी कर लेंगे किसी हाँ टाइम वक्त निकाल के ना। हाँ जी ठीक है आगे इंशाल्लाह। ठीक है, इतना हम खत्म रहने हो गया देते तो हैं, ठीक काफी हो है, गया। हाँ खत्म नहीं अगर इतना खत्म ही हो अभी गया तो ठीक है ना। इतना ठीक है ना, वीकेंड भी है ना सिस्टर भी। अगर ठीक है नहीं हुआ इंशाअल्लाह तो ताला। अभी मैंने जाना भी है कि सुबहानक हाँ अल्लाहुम्मा जी व जाना बिहम्दिक वही ना, नशहदु अल्ला वीकेंड है ना, इलाहा सब इल्ला लोगों को अंता जी नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर वालेकुम रहमानिर अस्सलाम रहीम। वरहमतुल्लाहि दुरूद वबरकातुहू। शरीफ पढ़े सारे। दुरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा पहले। सल्ली अला अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला मुहम्मद वला वाला आलि सय्यिद मुहम्मदिन मुहम्मद कमा اللهم सल्लैत صل अला ला इब्राहीम इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम हमीदुम मजीद। मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। प्यार आ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? जी जी खास आ रहा है ना, जी मुख्तलिफ तरीके से, जो हाँ जी प्यार पहले कभी नहीं आता था। जी जी ऐसा ही है ना, हाँ क्योंकि जब किसी को अल्हम्दुलिल्लाह। जान लेते हैं किसी के हालात के बारे में तो हमें ज्यादा उनका मालूम हो जाता है, तो फिर वो घूमते हैं हालात तो हमें ज्यादा प्यार आता है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें पढ़ने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और अपने आमीन लिए सुम्मा आमीन सबक लेने की तौफीक दे। हम भी जिंदगियां ऐसे गुजारे। आमीन आमीन या रब्बिल सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला आमीन हमारे कबूल करे, आमीन आमीन आमीन। कबूल करे। जो किया हमने इन 10 दिनों में ये कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे हैं, ताकि जो कुरान के दौरा कुरान में हमने बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल हालात और तकलीफें और कामयाबियां और जंगों के बारे में पढ़ा, हमें वाकई वो यकीन आ जाए, और आमीन यकीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हम माने और सुन्नतों पर अमल करें और हदीसों पर अमल करें। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। आमीन अल्लाह अमल सुम्मा की आमीन तौफीक अता फरमाए, मुझे भी और आप आमीन सबको भी। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन।